let us discuss how energy bands are formed in case of solid state. Now, see here, in case of solid state, how why energy levels are not existing, why energy bands are existing. That actually we need to discuss here. Is it clear or not? सॉलिड स्टेट फिजिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो एनर्जी लेवल नहीं पढ़ते, एनर्जी बैंड पढ़ते हैं. क्लियर? तो देखते हैं जरा सा व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग एनर्जी लेवल्स इन केस, और यू कैन एनालाइज लाइक दैट. सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एनर्जी लेवल का कंसेप्ट क्यों चेंज हो जाता है एनर्जी बैंड में. क्लियर? तो वो हम लोग चेक करते हैं. उससे पहले देखिए जरा सा, देखिए सारा जड़ जो है ना, ये एनर्जी लेवल और एनर्जी एनर्जी बैंड का, इसकी पढ़ाई का मेन मुद्दा जो है, सारा गेम, सारा कंसेप्ट जो आता है वो पोटेंशियल एनर्जी से आता है. क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी, वंस यू आर हैविंग command over that, then you can very easily understand why there is no energy, why energy, how energy levels get converted in terms of energy band in case of solid. When atoms are far away from each other, then no solid, then there will be energy level. But when atoms are very close to each other, it means solid state has formed. So in that case, we are going to discuss not energy level, but we are going to discuss energy band. Is it clear or not? तो देखिए जरा सा, तो सबसे पहले कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. देखिए पोटेंशियल एनर्जी का वेरी सिंपल. से फॉर एग्जांपल, से दिस इज नथिंग बट चार्ज हियर q1. Say for example, this is charge here, it is nothing but simply q2. Say distance is nothing but simply r12 or r21, चाहे बोल दीजिए. r12 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, r21 बोल देंगे तब भी बात वही होगा, 2 से 1. इज इट क्लियर? इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी इफ आई वांट टू डिफाइन, that is q2 divided by 4 pi epsilon 0 r12, or you can write r21, both are equal. Is it clear? So this is the procedure to write the potential energy that we have studied in the electromagnetics also. So we are not interested in that. What I need to discuss here is, say for example, this charge is positive charge. Say for example, this charge is negative charge. एक example लेके चल रहे हैं. Definitely there is a force of attraction between the two, because positive charge and negative charge, then force of attraction will be there. If I want to write the potential energy U in this case, if one charge is positive, one charge is negative, then I will write here minus Q1. This is nothing but Q2 divided by 4 pi epsilon 0. This is nothing but simply R12, or it is nothing but R21. Things are same. Clear? But R12, R21 equal. Is it clear or not? Now what I need to discuss here is, if I substitute the value of charge 1, if I substitute the value of charge 2, if I substitute 4 pi epsilon 0, distance between, distance either R12 or R21, they are equal. Clear? So in that case, I will get some potential energy. Energy is observed in terms of joules. Since it is charges are of micro nature, so I'm assuming this is of the order microjoule, or it is nothing but millijoule. SI unit not important. Clear? But say for example, if I solve this value example, I'm considering an example. I substituted the value of q1, q2, and I got the result in the positive quantity or negative quantity. ये बताइए, चार्ज की वैल्यू आपने रख दी, चार्ज की वैल्यू, ये सब वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फाइनल एक नेगेटिव तो लगेगा ही लगेगा. तो मान लेते हैं इसका आंसर आ गया -100 मिली जूल. आई होप यू गॉट द आइडिया. देखिए जरा सा, माइनस है, यूनिट बॉदर करने की जरूरत नहीं, यूनिट भी मिटा देते हैं, माइनस में आएगा. क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों में इन दोनों में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, डेफिनेटली फोर्स विल बी ऑफ विच नेचर? बताइए जरा सा. अट्रैक्टिव नेचर. इन दोनों में जो फोर्स होगा वो किस नेचर का हो जाएगा? अट्रैक्टिव नेचर. नाउ if I want to, it means these two charges have formed a system because of which nature of force between them? बताइए जरा सा. attractive nature of force between them. Is it clear or not? Now if I want to break this system, say for example I want to break this system, मुझे इस सिस्टम को तोड़ना है. ये दोनों अट्रैक्शन कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों करीब ही आएंगे, मुझे इस सिस्टम को तोड़ना है. इफ आई वांट टू ब्रेक द सिस्टम, आई शुड ब्रिंग दीज टू चार्जेस मोर क्लोजर टू ईच अदर, और आई शुड टेक दीज चार्जेस फार अवे. डेफिनेटली अगर इन दोनों को तोड़ना है तो दूर लेके जाना होगा. इट मीन्स distance should be increased. It means R12 और R21 should be increased. अगर मुझे तोड़ देना है, तोड़ देने का मतलब बिल्कुल ही इनमें अट्रैक्शन ही खत्म हो जाए. इट मीन्स R should be tending to कहाँ? बताइए जरा सा. इंफिनिटी. लार्ज डिस्टेंस हो गया, कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा. इट मीन्स इफ R tending to infinite, if I substitute in this or in this, either substitute in this force or you
सिंस इट इज नेगेटिव नेचर, तो इसमें रखिए जरा सा। तो अगर आप इसमें आर की वैल्यू आप इन्फिनिटी रख देते हैं, चाहे इसमें रखो चाहे उसमें रखो, लेकिन चूंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये मान लो, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बताइए जरा सा, जीरो हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये तो जब है when q1 is also positive or q2 is also positive, but here I have assumed q1 positive q1 negative, so I am substituting in this। तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई। अच्छा एक बात बताइए, हमने पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला था, -100। इज इट क्लियर? हमें इस सिस्टम को ब्रेक करना है, सिस्टम को ब्रेक करने के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी करनी होगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो करने के लिए, -100 को जीरो करने के लिए, डेफिनेटली इफ आई एड 100 देन ओनली दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो। अच्छा आपके पास 5 रुपया है और मैं आप में कुछ और ऐड कर रहा हूं, तो मतलब मैंने आपको दिया, तो -100 पहले से है, मैंने +100 इसमें जोड़ा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आई हैव डन, आई हैव गिवन। तो इसका मतलब ये भी एनर्जी है, जूल था इसका यूनिट, तो ये भी जूल ही होगा। मैंने जूल इतना इसको दिया है, इसका मतलब मैंने एनर्जी इसको दिया है, तो इसका मतलब मैंने इस पे काम किया होगा, तभी तो मैंने उसको एनर्जी दिया है। मैंने उसको एनर्जी दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस सिस्टम को ब्रेक करना है, अगर इस सिस्टम को ब्रेक करना है, तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक वर्क फ्रॉम दिस और आई हैव टू ऐड वर्क इन दिस, आई हैव टू ऐड वर्क इन दिस। इसका मतलब मुझे इसमें काम करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव हो जाता, अगर ये +100 होता, तो अगर जीरो करना है तो -100 करते, -100 का मतलब जितना था उसमें से निकाल लिया, मतलब मेरे को मिला। और अगर मैं इसमें +100 जोड़ रहा हूं तो मैं उसको दे रहा हूं। आई होप यू गॉट द आइडिया, कंसेप्ट ऑफ वर्क डन बाय मी और वर्क अचीव्ड बाय मी और एनर्जी अचीव्ड बाय मी। इफ इट इज नेगेटिव आई वांट टू मेक जीरो, then I have to give 100. If it is +100, if it is plus quantity, then I have to take something, then only it will become zero, then I have to subtract. Subtraction means taking from this. Addition means I am giving in this. I hope you got the idea. This is the meaning of it. Means if I want to ask about this, I am adding in this. It means I am giving this. I am giving 100 to this. It means I have got this or I have given this. It means I have worked on this. It means work done by me on what, on this system, or it can also be called as work done on the system. I have given work to this by a quantity 100. It means I have done work on this. -100 means representing this system. It means I have given, +100 means I have done some work on this system. I hope you got the, क्यों वर्क, क्योंकि ये जूल है तो ये भी जूल ही है। आई होप यू गॉट द आइडिया। आगे चलते हैं, अब जरा सा और देखिए, जरा सा इसको थोड़ा सा समझिए पहले। सी for example, this is nucleus here, this is the surrounding orbits like that, say for example, these all are the orbits like that here, in which electrons will revolve. This is electron here, this is electron here, this is electron here, which will revolve in this orbit. Say this is nothing but simply first orbit, that is n is equal to 1. Say this is second orbit, n is equal to 2. Say this is third orbit, n is equal to 3. What I want to state here is, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए जरा सा, electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus. ये nucleus, इसके around electrons are revolving, but they are not randomly revolving. They are revolving only in a particular orbit. इसका मतलब ये हो गया, सेंटर से अगर ये रेडियस है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये एक पर्टिकुलर रेडियस होगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, पर्टिकुलर मींस पर्टिकुलर रेडियस, तो इसका मतलब ये रेडियस किस नेचर की हो गई बताइए जरा सा, क्वांटाइज्ड नेचर। आई होप यू गॉट द आइडिया। इसका मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कर सकता है रिवॉल्व, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का एक पर्टिकुलर रेडियस होगा। मेरे कहने का मतलब, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि इसके बीच में भी रिवॉल्व करेगा, क्लियर, इसी में ही करेगा, इसमें करेगा तो फिर इसी में करेगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, क्लियर। इन देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उस केस में एंगुलर, और करेगा ही करेगा, इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम
mvr that is equal to nh upon it is nothing but simply 2 pi. I hope you got the idea. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं यहाँ से r निकालना चाहूँ तो मास तो फिक्स होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इसका मतलब r जो होगा n की वजह से बदलेगा, और n क्या है 1 2 3 4। इसका मतलब r कुछ भी नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर होगा। n 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, n 2 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, n 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? इसका मतलब रेडियस कुछ भी है, एक पर्टिकुलर ही होगा। तो रेडियस हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज एनीथिंग, और रेडियस इज क्वांटाइज्ड। बताइए जरा सा, रेडियस हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, r is equal to nh upon 2 pi. This is nothing but simply mv, or more precisely rn. Why it is depending on n? I hope you got the idea. तो रेडियस हमेशा जो है क्वांटाइज्ड होता है। बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है 1 है 2 बीच में 1.5 ऐसा नहीं आएगा कभी। क्लियर है यहाँ पर? 1 है तो फिर 2 3 4 डिस्क्रीट लेवल, पर्टिकुलर लेवल। क्लियर? आगे चलते हैं, दोबारा देखिए जरा सा। सी अगेन, for example, this is the nucleus here, this is the revolving electrons are there in particular orbits. Say this is the electron here, this is the electron here, this is the electron here. N is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. Lot of orbits are there, no issue regarding. Say for example, this is the radius here, that is r1. Say this is the radius here, that is r2. Say this is the radius here, this is nothing but simply r3. A lot of radius you can design like that, r radius nth orbit, rn can be there. Is it clear or not? आगे चलते हैं, फिर दोबारा देखिए जरा सा। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए जरा सा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी अगर डिफाइन करना चाहें तो इट इज नथिंग बट सिंपली काइनेटिक एनर्जी प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। आई होप यू गॉट द आइडिया। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूँ, से फॉर एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए हाउ टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी। से दिस इज q1 q here, say this is q1, this is q2, this is q3, and it is going on, it is nothing but simply qn. If I want to write the potential energy like that, like that, like that, like that, like that, like that, I have to write the potential energy among each and every charges. Say for example, I want to write the potential energy for this orbit at this point. इस orbit पे अगर मैं potential energy लिखना चाहूँ तो जरा सा ध्यान से देखिए जरा सा। अच्छा, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? दैट इज नथिंग बट सिंपली Ze। ये होता है न्यूक्लियस पे। देखिए जरा सा, अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पे, फॉर n इज इक्वल टू 2, से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, देखिए जरा सा, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, ये वाला तो हो गया तुम्हारा प्लस Ze, और ये वाली चार्ज इलेक्ट्रॉन है माइनस ई, होल डिवाइडेड बाय इट इज नथिंग बट सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन 0। Say for example this is nothing but r2, I am writing like that, it is nothing but simply r2 potential। देखिए प्लस इस इलेक्ट्रॉन पे ये भी पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, ये भी पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, ये भी पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, मतलब इनका भी योगदान होगा इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी बनाने में। लेकिन देखिए जरा सा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे ई इंटू ई डिवाइडेड बाई समथिंग लाइक दैट, ई इंटू ई डिवाइडेड बाई समथिंग लाइक दैट, तो a lot of components will be there, but this component is so large enough because यहाँ पर एटॉमिक नंबर नॉर्मली बहुत लार्ज होता है। तो उस केस में जो है हम लोग इसको जो है लार्ज मान के बाकी सारे कंपोनेंट आई एम नेग्लेक्टिंग। वाई नेग्लेक्टिंग? बिकॉज इन दोनों में अगर पोटेंशियल एनर्जी बनाना है तो ई इंटू ई होगा, लेकिन अच्छा उसी तरह इसमें और इसमें पोटेंशियल एनर्जी बनाना है तब भी ई इंटू ई होगा, लेकिन यहाँ पर जेड ई इंटू ई है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो टोटल एनर्जी ई अगर मैं लिखना चाहूँ, दैट इज इक्वल टू minus Ze square divided by 4 pi. This is nothing but simply epsilon 0. This is nothing but simply R2, or you can write it as second. So it is nothing but simply
plus it is nothing but simply kinetic energy, that is equal to half, it is nothing but mv square. See here, total energy E, that is equal to minus z square divided by 4 pi epsilon 0, it is nothing but r2 plus kinetic energy half mv square. देखिए जरा सा ध्यान से देखिए, नाउ रिकॉल करिए जरा सा, देखिए जरा सा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इस ऑर्बिट में, से फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस हियर, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, से फॉर एग्जांपल दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी लाइक दैट, तो ये वाली जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट विल बी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बचा रहेगा, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन इट इज नथिंग बट r, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो Ze इनटू इट इज नथिंग बट E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज नथिंग बट r स्क्वायर। सेकंड ऑर्बिट होगा तो r2 स्क्वायर लिख देना, कोई बात नहीं है। देखिए जरा सा, तो इसका मतलब ये हो गया mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आर आर विल कैंसल, 4 पाई दिस इज नथिंग बट सिंपली एप्सिलॉन 0, दिस इज नथिंग बट सिंपली आर, एम वी स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये नीचे 4 है और एक हाफ है तो 8 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी माइनस, इट इज नथिंग बट सिंपली जेडी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, माइनस जेडी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4 पाई दिस इज एप्सिलॉन 0, इसको आप आर ही रहने दो इन जनरल, तो फिर यहाँ भी R2 लिख दीजिए, तो इन जनरल आप इसको आर ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये है, सब्स्टिट्यूट करिए, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन 0, दिस इज नथिंग बट आर, तो ये 1/4 है, ये 1/8 है, सॉल्व होगा तो ये बड़ा क्वांटिटी है, ये उसका आधा है तो आधा आ जाएगा, तो एनर्जी दैट इज इक्वल टू फ्रॉम हियर, एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन 0 आर, ये हो गया ना, 4 इंटू 2 8, क्लियर है यहाँ पर, ये 1/8 है, ये 1/4 है, सब्सट्रैक्शन करेंगे ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगर सेकंड ऑर्बिट में था तो यहाँ R2 लिख दिया था, थर्ड ऑर्बिट होता तो R3 लेते, अगर nth ऑर्बिट है तो क्या मैं यहाँ पे Rn लिख दूं, चल जाएगा। आगे चलते हैं, अब दोबारा फिर देखिए जरा सा, अगेन आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अगर हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लिया जाए, अगर हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लिया जाए तो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम Rn दैट इज इक्वल टू 0.59 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, क्लियर है, यहाँ पर आप भी पढ़े होंगे, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। अब जरा सा ध्यान से देखिए जरा सा सी, इसका मतलब रेडियस तो पहले से ही पता है, क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज मतलब n इज इक्वल टू 1 पर्टिकुलर रेडियस, n इज इक्वल टू 2 पर्टिकुलर रेडियस, n इज इक्वल टू 3 पर्टिकुलर रेडियस, रेडियस क्वांटाइज्ड हो गया। अब जरा सा ध्यान से देखिए, z तो फिक्स होगा कोई एटॉमिक नंबर, e 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 8 8 होता है, पाई पाई होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। Rn की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो नीचे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, इसका मतलब ये बोल सकते हैं Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एनर्जी यहाँ पर 1/Rn है, तो 1 अगर मैं लिखना चाहूं Rn अगर n स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर 1/n स्क्वायर, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। आई होप यू गॉट द आइडिया, वाई n स्क्वायर, Rn की जगह पे ये n स्क्वायर आएगा, 0.59 भी आएगा, वो रहने दीजिए आप, अब यहाँ पे n स्क्वायर रख दीजिए, क्लियर। इसका मतलब एनर्जी के बारे में बात करें तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा बताइए जरा सा, n पे, तो इसका मतलब यहाँ पे E न लिख के En लिख दूं, तो उसी तरह यहाँ पे भी ई न लिख के En लिख देता हूं, वजह क्या है, आर एन पे डिपेंड कर रहा है तो एनर्जी भी एन पे ही डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं अगर रेडियस क्वांटाइज्ड है तो एनर्जी भी किस तरह से होगी बताइए जरा सा, क्वांटाइज्ड नेचर की ही होगी। आई होप यू गॉट द आइडिया, एनर्जी एज वेल एज क्या बोलते हैं आपका रेडियस बोथ आर नथिंग बट सिंपली क्वांटाइज, इसका मतलब एनर्जी भी कुछ भी नहीं हो सकती, एनर्जी भी एक पर्टिकुलर ही हो गया, ऐसा नहीं होगा मर्जी है कभी कुछ एनर्जी आ गया, मर्जी है कभी कुछ एनर्जी आ गया, तो उस तरह नहीं होगा, क्लियर। और आगे चलते हैं, तो इस वाले केस में Z सब्स्टिट्यूट करेंगे, E सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उस केस में जिस तरह Rn फॉर हाइड्रोजन एटम 0.59 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम है, उसी तरह एनर्जी
अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी चीजें तो इसमें आ जाएगा आपका -13.6, -13.6 डिनोमिनेटर में आर एन है तो एन स्क्वायर आ जाएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. आई होप यू गॉट दैट. दिस रिजल्ट not important for the examination point of view, but for further analysis how solids have band, energy band, not energy level. तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अब जरा सा ध्यान से देखिए, जरा सा सी. इसका मतलब ये देखिए जरा सा, n इज इक्वल टू 1, एनर्जी En, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -13.6 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है. तो ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आगे चलते हैं. n इज इक्वल टू 2 रखिए, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 4. तो यहाँ -13.6 डिवाइडेड बाई 4 होगा तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटा नेगेटिव में बड़ा होता है, तो इसका मतलब जितना छोटा होगा वो ऊपर जाएगा नेगेटिव में. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट -13.6 डिवाइडेड बाई 4, और सिंपली यू कैन राइट हियर 4 3 12.4416, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और आगे चलते हैं. n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3. n इज इक्वल टू 3 आप सब्स्टिट्यूट करिए, 3 स्क्वायर 9, 13.6 अपॉन 9, 13.6 डिवाइडेड बाय 9, तो 1 पॉइंट समथिंग, 1.5 अप्रोक्स, बट इन पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू. दिस इज नेगेटिव वैल्यू. जितना नेगेटिव कम होता जाएगा उतना जीरो के पास जाएगा ना, तो जीरो ऊपर आएगा. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो देखिए जरा सा. तो n इज इक्वल टू 1 पे एक पर्टिकुलर एनर्जी है, n इज इक्वल टू 2 पे एक पर्टिकुलर एनर्जी है, n इज इक्वल टू 3 पे एक पर्टिकुलर एनर्जी है. एनर्जीज आर देयर एट पर्टिकुलर लेवल. लेकिन ये जब भी वैलिड है जब एटम जो है फार अवे फ्रॉम ईच अदर है. एक एटम का इंटरेक्शन दूसरे एटम पे बिल्कुल भी नहीं है, सारे एटम अलग अलग हैं, तो उस केस में ये रिजल्ट सही रह जाता है. एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है. n इज इक्वल टू 1 पे एक एनर्जी है, n इज इक्वल टू 2 पे एक एनर्जी है, n इज इक्वल टू 3 पे एक एनर्जी है, तो ये कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन सॉलिड स्टेट के केस में एटम्स फार नहीं होते, एटम क्लोज टू ईच अदर होते हैं. जब एटम्स क्लोज टू ईच अदर होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि तो जब एटम्स क्लोज हो जाएंगे तो उस केस में चेक कर लेते हैं, जरा सा देखिए क्या होता है. सी, तो ये जब है जब एटम्स फार फ्रॉम ईच अदर atoms far from each other. Now, let us check in case of solid state when atoms are close to each other whether this energy levels remain as it is or some changes are there. Clear? उसको देखते हैं. फिर एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है. तो आप जरा सा उसको देखिए जरा सा, फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं. देखिए जरा सा, अभी हम लोगों ने जो डिफाइन किया था, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, electron like that, so no issue regarding because single electron is there. If this electron is there at this point, if I want to calculate potential energy, I will calculate potential energy because of this nucleus, potential energy on this because of this neglected, this potential energy neglected. Why? Because this is large enough with respect to this, so I can neglect this. इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो हम मेनली लिखेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से लिखेंगे और न्यूक्लियस की वजह से भी लिखेंगे, या सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से लिख दो. इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है उस जगह पे जो है आप न्यूक्लियस और उस जगह के इलेक्ट्रॉन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए. बाकी छोटे होते हैं, नेग्लेक्ट हो जाता है. क्लियर? आगे चलते हैं. अब दोबारा देखिए जरा सा. सी, तो अभी तो ये एक एटम है तो वो एक एनर्जी लेवल था, n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 2 पे, n इज इक्वल टू 3 पे. अब देखिए जरा सा, अगर एटम एटम करीब करीब आ जाएंगे, n is equal to 1, n is equal to 2, this is nothing but Ze, this is electron, this is electron. Again, for example, one more nucleus I am considering, say for example, this is nothing but simply Ze, this is nothing but electron, this is electron, like that. A lot of electrons are there. Now, if you see this, अच्छा ये n is equal to 1 है,
n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये वाला n इज इक्वल टू। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं सेकंड लेवल n इज इक्वल टू 2 पे एनर्जी, अगर इस डायग्राम के लिए, अब जो है एटम फार नहीं है, अब एटम क्लोज हो गए, क्लियर, क्लोज आ गए, क्लियर। अब एक बात बताइए जरा सा, n इज इक्वल टू 2 पे हम लोगों ने पिछले केस में जब एनर्जी कैलकुलेट किया था तो वहां n इज इक्वल टू 2 एक ही था, आज n इज इक्वल टू 2 एक है, दो है या तीन है, तीन जगह पे n इज इक्वल टू 2 है। तो मैं पहले कैलकुलेट करता हूं, देखिए जरा सा, इस जगह पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखिए जरा सा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू पे कहीं पे भी हो सकता है इस जगह पे, तो इसकी वजह से तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे। अगर हाइड्रोजन एटम मान लिया जाए तो एनर्जी ये थी -13.6 डिवाइडेड बाई एन इज एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो -13.6 डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट सिंपली 4, तो -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। से फॉर एग्जांपल ये पिछले वाले केस में था, -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल जाएगा जब ये एटम अकेला था। लेकिन आज एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट भी अगर कर दें, वो इसलिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी कमजोर होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो इसकी वजह से जो आना है वो तो आएगा ही आएगा। अच्छा एक बात है, जब एटम क्लोज है तो इसका ये वाला न्यूक्लियस भी इसको इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आएगी, कंसीडर करना होगा। ये एटम भी अगर इसके क्लोज है तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी इसको अल्टर करेगा। तो इसका मतलब पहले एक न्यूक्लियस का इफेक्ट था जो पोटेंशियल एनर्जी इतना देता था, अब दूसरा न्यूक्लियस भी इफेक्ट करेगा, तीसरा न्यूक्लियस भी इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी वो अपने ही न्यूक्लियस की वजह से की जाएगी या बाकी न्यूक्लियस भी कंसीडर करना होगा। देखिए अब तो सब करीब आ गए, अब तो इसका इन्फ्लुएंस भी होगा, इसका इन्फ्लुएंस भी होगा, इसका मतलब -1.4 ही रहेगा या फिर चेंज हो सकता है। मान लेते हैं -1.42 हो गया 1.42 हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा n इज इक्वल टू 2 सिर्फ n इज इक्वल टू 2 सिर्फ यहाँ पे है या इस जगह पे भी है? इस जगह पे भी n कहीं पे भी ले लो, इस n इज इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2 है। इस पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसका न्यूक्लियस तो आएगा ही आएगा, इसका न्यूक्लियस भी इफेक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस भी इफेक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे 1.42 आया है माइनस में, तो यहाँ जरूरी नहीं है 1.42 आ जाए। देखिए क्यों जरूरी नहीं है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली जो यहाँ से डिस्टेंस है और क्या बोलते हैं बाकी सारे डिस्टेंस, ये जरूर ये डिस्टेंस ली गई है, ये डिस्टेंस ली गई है। अच्छा देखिए ये सेकंड से ये न्यूक्लियस है, इसके सेकंड से ये न्यूक्लियस, क्या गारंटी है ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा? कोई गारंटी नहीं है। अच्छा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कोई गारंटी नहीं है सेम होगा या नहीं होगा तो थोड़ा बहुत अल्टर हो सकता है, -1.41। उसी तरह इस पे निकाल के देखिए, इसका न्यूक्लियस तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा, इसका न्यूक्लियस भी बनाएगा और इसका न्यूक्लियस भी बनाएगा। अब ये कोई गारंटी थोड़ी है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होगा, तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -1.4 एग्जैक्टली आएगी या चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल -1.43 मान लिया, इसका मतलब ये हो गया n इज इक्वल टू 2 पे अगर सॉलिड स्टेट में बात की जाए, एक एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी है ये वाला, ये वाला, ये वाला, या n इज इक्वल टू 2 पे तीन अलग अलग तरह की एनर्जी है, बताइए जरा सा। तो इसका मतलब अब अगर मैं दिखाना चाहूं आपको, ये n इज इक्वल टू 2 है, फॉर n इज इक्वल टू 2 इन दिस सिस्टम, सॉलिड स्टेट सिस्टम, ओनली वन एनर्जी इज देयर, टू एनर्जी इज देयर और थ्री एनर्जीज आर देयर। बताइए जरा, तीन एनर्जी। इसका मतलब एक ही लेवल पे n इज इक्वल टू 2 पे कई सारी एनर्जी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर। उसी तरह n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ड्रॉ करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 के लिए भी कई सारी एनर्जी होंगी। उसी तरह उसी तरह n इज इक्वल टू 3 के लिए भी, n इज इक्वल टू 3 के भी n इज इक्वल टू 3 के लिए भी, तो कई सारे, मतलब एक जगह पे एक n की वैल्यू पे एक एनर्जी या कई एनर्जी। अच्छा कई एनर्जी मींस फिक्स एनर्जी और रेंज ऑफ एनर्जी, तो रेंज को एक नाम और भी दिया जाता है, रेंज इज आल्सो कॉल्ड एज क्या, बताइए जरा सा, बैंड। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि सॉलिड स्टेट में एनर्जी लेवल की जगह क्या एग्जिस्ट करने लगता है,
एनर्जी बैंड एग्जिस्ट करने लगता है। आई होप यू गॉट द लॉजिक व्हाई एनर्जी बैंड्स आर एग्जिस्टिंग। तो एनर्जी बैंड्स आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ एनी phenomenon or because mainly the effect of potential energy of another atom which is which is affecting the potential energy of the other atom। बताइए जरा सा, तो किसी की भी वजह से है या पोटेंशियल एनर्जी एक एटम का दूसरे एटम पे प्रभाव पड़ा रहा है, दूसरे एटम पे प्रभावित कर रहा है। क्लियर? आई होप यू गॉट द लॉजिक। तो व्हाई दिस नॉट एनर्जी लेवल्स आर एग्जिस्टिंग बट व्हाट इज एग्जिस्टिंग, बताइए जरा सा, एनर्जी बैंड। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये डायग्राम अगर जरा सा आप ध्यान से देखिए, तो अगर आप थोड़ा ध्यान देखें तो ये कम चौड़ा है, ये ज्यादा चौड़ा बनाया, ये और चौड़ा बनाया, कारण क्या है? अच्छा एक बात बताइए, n इज इक्वल टू 1 2 3, n इज इक्वल टू 1 2 3। अच्छा, जितना n बढ़ेगा उतना आउटर मोस्ट शेल। अच्छा एक बात बताइए, ये पोटेंशियल ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस अंदर वाले को ज्यादा असर कराएगा या बाहर वाले को ज्यादा असर कराएगा? डेफिनेटली ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस बाहर वाले शेल को ही ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो ज्यादा इफेक्ट अगर करेगा तो ज्यादा चांसेस ऑफ बैंड बनने के कहाँ है? बताइए जरा सा, इनर मोस्ट शेल में या आउटर मोस्ट शेल में? तो इसीलिए आउटर मोस्ट शेल, और n इज इक्वल टू 4 जाइए तो और चौड़ा बनाइए। आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाई एज n इज इंक्रीजिंग द बैंड साइज इज इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं, दोबारा फिर देखिए जरा सा। अगेन, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि आज के बाद जो है क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में एनर्जी लेवल नहीं एग्जिस्ट करता, बल्कि क्या एग्जिस्ट करता है? एनर्जी बैंड एग्जिस्ट करता है। उसका एक वजह मैंने आपको बता भी दिया, वो एक वजह ये है, एक क्या, वो एकमात्र वजह ये है कि जो माइनर इफेक्ट्स तो हैं लेकिन हम मेजर इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम इज गोइंग टू अल्टर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नेबरहुड एटम। क्लियर है यहाँ पर? तो किसी दूसरे एटम का न्यूक्लियस पोटेंशियल एनर्जी को प्रभावित कर देगा नाइबरिंग एटम वाले को। क्लियर है यहाँ पर? और ज्यादा प्रभावित किसको करेगा, इनर मोस्ट वाले को या आउटर मोस्ट वाले को? बताइए जरा सा, आउटर मोस्ट वाले को। इसलिए जितना आउटर मोस्ट चलते हैं उतना जो है हम लोग बैंड को जो है चौड़ा बनाते हैं। आगे चलते हैं, दोबारा फिर देखिए जरा सा। देखिए, अगर हम लोग सिलिकॉन कंसीडर कर लें या जर्मेनियम कंसीडर करें, इसका एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम 32। सी, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, 12th क्लास में लिखे भी होंगे, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p2। देखिए जरा सा, जर्मेनियम का भी लिख सकते हैं, बस लास्ट में 4s2 4p2 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज आता है, हम उसका लिखना नहीं चाह रहे। मैं सिलिकॉन आपको समझा देता हूँ हाउ एक्चुअली इट इज हैपेंस। देखिए जरा सा, अच्छा सबसे पहली बात ध्यान से देखिए जरा सा, मैं ग्राफ से आपको समझा देता हूँ, ये ध्यान से देखिए जरा सा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज डिस्टेंस, d इज द डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, नॉट ओनली डिस्टेंस बट इट इज कॉल्ड एज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्लियर? आगे चलते हैं, देखिए जरा सा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तो ठीक है दो एटम के बीच में, लेकिन मेनली इफेक्ट कौन होगा? बताइए जरा सा। दो एटम करीब, भले ही हम एटॉमिक डिस्टेंस सेंटर से सेंटर मेजर करते हैं, लेकिन एक एटम का सेंटर जो है दूसरे एटम के सेंटर को ज्यादा इफेक्ट करेगा, या एक एटम का सेंटर ज्यादा प्रभावित जो है बाहर वाले शेल को करेगा? बाहर वाले शेल को करेगा। अच्छा देखिए जरा सा, आपको मालूम होना चाहिए, टू सबसे पहला वाला शेल में फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में भी देख लेते हैं 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 6 और 2 ये 8 यहाँ आ गए, बचे कितने? 4, वो तो 4 यहाँ रह सकते हैं। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सिलिकॉन के केस में? 4। और मतलब ये हो गया कि आउटर मोस्ट शेल में 4 होंगे, वो भी एक ही ऑर्बिटल में नहीं होंगे, दो अलग अलग ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में कितने हैं? 2। पी ऑर्बिटल में कितने हैं? 2। इज इट क्लियर? इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अकेले एक ऑर्बिटल में है या दोनों ऑर्बिटल में? दोनों ऑर्बिटल में। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये 3s वाला ऑर्बिटल है, ये 3p वाला ऑर्बिटल है। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए जरा सा, यहां देखिए जरा सा, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये तो एक सिलिकॉन है, उसके लिए ये है। अब देखिए जरा सा, अगर यहाँ पे एक सिलिकॉन नहीं होता,
दो से दूसरा सिलिकॉन का लिखा जाता तो दूसरे के आउटर मोस्ट शेल में भी इस तरह दो आता, 3p के दूसरे वाले में भी दो आता, इसका मतलब 3s में दो और दो आ जाते, 3p में दो और दो आ जाते। मेरे कहने का मतलब एक सिलिकॉन है तो यहाँ पे दो है, दूसरा सिलिकॉन होता तो फिर 3s के लिए एक दो आ जाता, फिर 3, इसका मतलब अगर n एटम्स ऑफ सिलिकॉन हो जाए, दो के लिए दो बार दो, तीन के लिए तीन बार दो, तो n अगर एटम्स है, फॉर n एटम्स, क्योंकि सॉलिड स्टेट में एक एटम तो होगा नहीं, n एटम, एक के लिए दो है तो दो के लिए दो बार दो आ जाता, तीन के लिए दो बार तीन बार दो आ जाता, तो n के लिए कितना आ जाएगा, 2n। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6, लेकिन है कितने, दो। एक सिलिकॉन है तो दो है, दूसरा सिलिकॉन आता तो फिर 3p में दो आते, तीसरा सिलिकॉन आता तो फिर 3p में दो आते, इसका मतलब 2n हो जाते। लेकिन एक एक सिलिकॉन में कितने, एक सिलिकॉन के 3p में कितने रह सकते हैं, 6n पॉसिबल, बट प्रेजेंट कितने हैं, 2n। आगे चलते हैं, यहां पर s ऑर्बिटल में तो दो ही रह सकते हैं और पॉसिबल, और कितने हैं, दो के दो हैं, इसका मतलब 2n प्रेजेंट। आई होप यू गॉट द आइडिया, क्लियर है यहाँ पर। क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि n नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम नहीं है, n नंबर ऑफ एटम्स है। दोबारा आगे चलते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देखिए जरा सा, अगर मैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम डिक्रीजिंग द डिस्टेंस मीन्स आई एम कमिंग टुवर्ड्स जीरो, तो आई एम डिक्रीजिंग द डिस्टेंस मीन्स आई एम कमिंग टुवर्ड्स जीरो, इट मीन्स व्हेन एटम्स आर क्लोज टू ईच, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डिक्रीजेस मीन्स टू एटम्स के बीच का जो है दूरी वो कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक का न्यूक्लियस दूसरे के आउटर मोस्ट शेल को तो प्रभावित कर देगा। क्लियर है यहाँ पर, आई होप यू गॉट द आइडिया। एक जो है एटम का न्यूक्लियस जो है दूसरे वाले के आउटर मोस्ट शेल को तो इफेक्ट करेगा, और जैसे ही इफेक्ट करेगा तो एक एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, ये एनर्जी बैंड एग्जिस्ट करेगी, ये वाली एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी। अच्छा एक बात है, तो ये एक पर्टिकुलर एनर्जी है, ये एक पर्टिकुलर है, जब एटॉमिक डिस्टेंस कम होगा, डी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो अब ये लेवल लेवल रहेगा या फिर बैंड बन जाएगा, बताइए जरा सा, अभी पीछे डिस्कस किया था। तो ये जो है इस तरह से बाइफरकेट हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर, सिमिलरली इस तरह से ये वाला भी बाइफरकेट। क्यों बाइफरकेट, क्योंकि जो है इसको लेवल नहीं रहना है, अब बैंड बनना है। क्लियर, तो बैंड का मतलब दायरा। क्लियर, और करीब आइए, when you come more closer towards this, these two lower part get intersected, and finally the this 6n and this 2n, these two merge inside। क्लियर, यहाँ पर इतना बैंड बनता है कि ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 3s में कितने पॉसिबल थे, इसमें कितने पॉसिबल थे, अब यहाँ पे जब मिल गए हैं तो टोटल कितने पॉसिबल बताइए जरा सा, 8n पॉसिबल, 8n electrons are possible। Here how much present, here how much present, it means 2n present, 2n present, it means in this region from here how many present बताइए जरा सा, 4n present। I hope you got the idea। आपको ये समझना है कि ये बाइफरकेट क्यों हो गए, क्योंकि अब लेवल बैंड का रूप धारण कर चुका है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया, आगे चलते हैं। और आगे अगर बढ़ा जाए, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं, तो ये वाला जो 8n पॉसिबल है जिसमें 4n प्रेजेंट है, वो 8n जो है इस तरह से डिवाइड हो जाता है वापस। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया। तो इसका, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कभी भी हो जाता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसको डीसी भी बोला जाता है, डी सबस्क्रिप्ट में सी है, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज, कौन सा डिस्टेंस बताइए जरा सा, लैटिस डिस्टेंस, या फिर इसको नाम दिया जाता है लैटिस स्पेसिंग। क्लियर है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये जो 8n पॉसिबल स्टेट, यहाँ के 6n और यहाँ के 2n, जो दोनों मिलके 8n पॉसिबल हो गए थे, लेकिन 8n पॉसिबल तो है, प्रेजेंट कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4n। क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसको कहा जाता है लैटिस स्पेसिंग, एट लैटिस स्पेसिंग this 8n states, 8n possible states bifurcate again into two parts, one is nothing but lower half, another is nothing but upper half,
दिस लोअर हाफ इज आल्सो कॉल्ड एज, आपने बहुत फेमस नाम सुना भी होगा, वैलेंस बैंड, अपर पार्ट इज कंडक्शन बैंड। अब दोबारा देखिए जरा सा, तो जो ये एटन दो हिस्सों में बटे हैं, ऐसा नहीं है कि एक तिहाई, दो तिहाई, एक चौथाई, दो तीन चौथा, ऐसा नहीं बटे हैं। 8 में से इक्वल 4n ऊपर चला जाएगा, 4n नीचे चला जाएगा। आई होप यू गॉट दैट। ये 8n दो हिस्सों में बट गए हैं, 4n 4n। आई होप यू गॉट द लॉजिक। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी चीज स्टेबल रहना चाहेगा, अनस्टेबल रहना चाहेगा? अगर स्टेबल रहना चाहेगा तो ये जो 4n इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहाँ 2n इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट, यहाँ 2n इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो वो ऊपर रहेंगे तब स्टेबल रहेंगे या नीचे रहेंगे तब स्टेबल रहेंगे? नीचे रहेंगे तभी स्टेबल। 4n पॉसिबल यहीं पे, 4n फील्ड या प्रेजेंट। अच्छा यहाँ 4n पॉसिबल तो है, लेकिन जो 4n प्रेजेंट थे वो नीचे चले गए, तो इसका मतलब यहाँ के जो 4n होंगे वो फिल्ड होंगे या एम्प्टी होंगे? बताइए जरा सा। इट इज नथिंग बट सिंपली एम्प्टी। आई होप यू गॉट द लॉजिक। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते हैं तो फिर ये एनर्जी लेवल बाइफर्केट हो जाता है, एनर्जी लेवल का रूप धारण कर लेता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव करने से ये दोनों ऊपर के 6n और नीचे के 2n मिलकर 8n हो जाते हैं, जिसमें से दो और दो, दो प्रेजेंट 4 प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब 8n पॉसिबल है, 4 प्रेजेंट है, तो बाकी 4n तो एम्प्टी है। आई होप यू गॉट द आइडिया। और पर्टिकुलर और मूव करिए, डिस्टेंस कम करिए, तो ये जो 8n है दो हिस्सों में बट जाते हैं। नीचे वाला हिस्सा जो है वैलेंस बैंड कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा जो है कंडक्शन बैंड कहलाता है। जो 8n पॉसिबल है, 4n नीचे हो जाता है, 4n ऊपर, लेकिन ये जो 4n प्रेजेंट है वो सारे के सारे नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए डेफिनेटली सम एनर्जी शुड बी गिवन so that these electrons may get excited to the higher level। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, once again if I want to define, हम लोग नॉर्मली पढ़ते इस तरह से, देखिए हम इस तरह बना देते हैं, ये वाला नाम हम दे देते हैं कंडक्शन बैंड, और ये वाला नाम क्या दे देते हैं बताइए जरा सा, बैलेंस बैंड। आप मेरे को इतना बता दीजिए, क्या कंडक्शन बैंड का बॉटम एज फ्लैट है या कर्व टेढ़ा है, टिल्टेड है? उसी तरह वैलेंस बैंड का भी शेप ऐसे टिल्टेड है, नॉट इट इज लाइक दैट फ्लैट। तो ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली बना लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली practically practically valence band is like this tilted, sorry, conduction band is like that, valence band is like that। I hope you got idea why energy levels are not existing but what is going to exist, बताइए जरा सा। energy band is going to exist। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा भी नहीं समझ में आया। तो एनर्जी बैंड जो बनता है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, न्यूक्लियस ऑफ द neighboring atom affects affects the affects the nearby atom। क्लियर यहाँ पर? आई होप यू इन द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से जो है एनर्जी लेवल नहीं एग्जिस्ट करता बल्कि क्या एग्जिस्ट कर जाता है बताइए जरा सा, एनर्जी बैंड एग्जिस्ट कर जाता है। हम लोग आगे चल के जो, और मेन योगदान किसी का भी है, पोटेंशियल एनर्जी का है, पोटेंशियल एनर्जी का भी हम लोग आगे चल के और देखेंगे कि ये बैंड, इसमें फॉरबिडन बैंड क्या होता है, इसमें जो है बैंड गैप क्या होता है, इसमें जो है हम लोग ये भी देखेंगे पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, व्हाट इज गोइंग टू बी इन केस ऑफ पोटेंशियल बैरियर, एंड देन वी विल सी हाउ द ट्रांजिशंस आर गोइंग। We will see EK diagram, EK energy wave vector diagram। इसमें we are going to calculate effective mass, y effective mass sometimes negative, y effective mass sometimes positive। Velocity K diagram we will also see how electron is flowing, uh, whose velocity is v। तो velocity with respect to wave vector, what the diagram is there। तो हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, एंड दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूएशन यहीं से होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सॉलिड स्टेट में एनर्जी लेवल नहीं एग्जिस्ट करता, एनर्जी बैंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नाइबरिंग न्यूक्लियस जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी को प्रभावित कर देता है। आई होप यू गॉट द आइडिया वेरी मच। इज इट क्लियर और नॉट? तो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड लक।